हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये चैनल इसलिए खोला गया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले कुछ मदद पहुंचाया जा सके, एज वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन whenever we just call them for the extra classes. So that's why you can learn something from this video. Now today we are going to explain about the lens maker formula. But at first you should know that what should be the formula that can be used for the refraction at a convex continuous surface. बिना इस फॉर्मूले के हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं समझ सकते, वो ज़बरदस्ती याद रखना हो जाएगा और बाद में एग्ज़ाम के टाइम में नहीं कर पाओगे. सो टुडेज टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एट convex continuous surface. Convex continuous surface. Let's draw the diagram of a convex continuous surface. Actually a convex surface ऐसा दिखता है, like this kind of diagram. ये actually एक convex surface है. अगर मैं इसका center मान लूँ कि इस जगह पे है, and I'm assuming that the center is named as P. I'm just passing the principal axis through it. So this is actually the principal axis. मेरा डायग्राम तो उतना बेहतर नहीं है, but I am just trying my best to make you people understand. So actually we are assuming that there is a point size object which is actually the source of light is placed at this point, and I'm just naming the object as O. So whenever it is placed in that principal axis, the light ray, first of all, it will travel along the principal axis. कोई भी light ray principal axis बराबर move करेगा, so there will be no refraction. वो light ray bend ही नहीं करेगा. It will just go straight like this. Okay. But if the light ray is entering through the convex surface like this is the incident ray. जब भी आप इंसिडेंट रे को ऐसे ड्रॉ करो, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यू हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल सो दैट आप रिफ्रैक्शन को समझा सको. वेन एवर आई एम जस्ट ड्रॉइंग द नॉर्मल शुड टच द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कन्वेक्स सरफेस. अगर ये कन्वेक्स सरफेस है तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ज़रूर होगा ना. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? वी आर एज्यूमिंग कि बाहर एक्चुअली एक रेयरर मीडियम है. मैक्सिमम केसेस में हम लोग इसको एयर मान लेते हैं. दिस रेयरर मीडियम, इफ यू वांट यू कैन राइट द टोटल रेयरर मीडियम. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एंड इनसाइड ऑफ दिस कन्वेक्स कंटिन्यूअस सरफेस इट्स एक्चुअली अ डेंसर मीडियम. तो ऐसे लिख लेते हैं, इट इज एक्चुअली अ डेंसर मीडियम. It's having the refractive index as μ2. तो जब भी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, आफ्टर द रिफ्रैक्शन द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ इसको बेंड करवाते हैं. ओहो, इतना बकवास डायग्राम हम बना लेते हैं कभी कभी. ओके, वी आर एज्यूमिंग दैट बोथ ऑफ द लाइट रेज, पहला जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस बराबर मूव कर रहा था, एंड रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस में पहुंचा, they both are forming an image here. This is actually a real image. Okay, I am saying this is actually I. तो इसमें एक्चुअली हमें एक फॉर्मूला, फाइनल एक फॉर्मूला डिराइव करना है दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस कन्वेक्स कंटिन्यूअस सरफेस. सो वी विल assume that the object is making an angle, like the incident ray is actually making an angle with respect to the principal axis as alpha. This refracted ray is making an angle with the principal axis as beta, and at the center of curvature the angle is gamma. Okay, if I am saying the angle of incidence, it is always the angle between the normal and the incident ray. So I can say this is the angle of incidence I. After the refraction, this is actually the refracted ray. So it has made an angle with the normal. मेरा normal तो काफ़ी टेढ़ा है,
but आप लोग कॉपी में सीधा बना लेना. ओके, दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. वी हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, वो रिप्रेजेंटेशन सबसे बेहतरीन होना चाहिए, so that the examiner can be happy. So we will write like this, that an object is placed on the principal axis of a convex continuous surface at point O. उसके बाद when the light ray is traveling along principal axis, it is undeviated. इसका कोई डेविएशन नहीं होता है. इट इज अनडेविएटेड. जो लोग इसको देख रहे हैं, इसको मूवी की तरह मत देखो, इसको पॉज करो एंड ड्रॉ द डायग्राम. जितना मैंने लिखा है उतना पहले कॉपी में लिखो, देन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. After that, we'll say that whenever the light ray is falling on the convex continuous surface at this point, इस point का एक नाम दे देते हैं. Suppose the point is A. So we can say that the incident ray is actually OA. Incident ray का तो एक नाम देना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे पुकारेंगे. So I'm just moving to the next page. Till that time you can pause, you can draw the diagram and write down whatever we have written. अगर किसी भी जगह पे डाउट है तो पूछ लेना है. ओके, नाउ an incident ray. I will go back to the diagram to make you people understand, don't worry, but पहले लिखना जरूरी है. An incident ray OA falls on the refracting surface and after the refraction it forms an image. In bracket you can write down, this is actually a point size image at I. ओके, अब इसके बाद आता है असली कहानी. Whenever I am saying that इसमें बहुत सारे triangles हैं, but actually I require some specific triangles. If I am saying that I am just talking about the triangle OAC, तो OAC को आप ऐसे देख सकते हो, राइट. OAC is just like this. छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली OAC ना. इसमें बाहर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, इसके अंदर यहाँ पे अल्फा, एंड दैट इज एक्चुअली योर गामा. बचपन में ट्राइंगल का एक रूल था दैट द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स. ओके, मतलब I इक्वल्स टू ऑफ अल्फा प्लस ऑफ गामा. ओके, वी कैन से दिस फ्रॉम दिस ट्राइंगल. और एक ट्राइंगल है दिस वन. आई एम जस्ट सेइंग दिस एज OAC. मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा था. इसके बाद देयर इज अनदर ट्राइंगल लाइक दिस. और इसी वक्त अगर किसी को लग रहा है नो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन यू शुड इन्फॉर्म मी दैट विच पार्ट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल. फिजिक्स को समझने के लिए बस पेशेंस चाहिए होता है. एक रात की बात नहीं है कि एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ लेंगे एंड यू विल बी द मास्टर इन फिजिक्स. Okay, now if I am saying about the triangle ACI, in that case I can say this is actually the angle R, this is the angle beta,
and external angle ऐसे बनता है. This is the external angle gamma. So can I say that gamma is equals to r plus of beta? So we can say that r should be equals to of a gamma minus of beta, right? I just require the value of angle I and angle r because I want to apply the Snell's law. Okay, you just have to identify the two triangles where we are applying the rule that the external angle is equal to the sum of the two internal angles. Okay, first of all we have applied the rule in the triangle OAC, then we have applied the same rule in the triangle AIC. Okay, so I'm just moving to the next side. अभी जो भी है रफ में लिख लो, एग्जामिनर को इतना भी डिटेल में नहीं बताना होता है, ये जस्ट रफ है खुद को समझने के लिए, मतलब खुद से समझने के लिए. After that we can go and we can apply the Snell's law. What do you know that from Snell's law? और if you want you can say like this, रफ में जो किया वो इस पेज में लिख देते हैं कि from triangle कौन सा वाला था, from triangle OAC, from triangle OAC what the conclusion we have, I equals to alpha plus gamma ना, तो I equals to alpha plus gamma, and from triangle और कौन सा था AIC, from that AIC what we have, R equals to गामा माइनस बीटा. एक्चुअली पहले लाइन से ही लिख देते हैं कि गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, सो आर इक्वल्स टू गामा माइनस ऑफ बीटा. Okay, after that we can apply the Snell's law. So we can write from Snell's law, sine of I divided by of a sine of R, that is equals to the refractive index of the medium जहाँ पे light ray bent हुआ है, यहाँ पे light ray bent हुआ है in the denser medium और light आ रहा था from the rarer medium. So you should write like this, it should be like a mu2 divided by of mu1, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है डिवाइडेड बाय जहाँ से लाइट आ रहा था. ओके, ये डेरिवेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो फॉर्मूला आएगा वो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में लगाने वाले हैं. अगर मैं कहूँ कि आप लोग रट लो तो आप लोग रट के चले जाओगे, फिर आप भूल गए तो बस खत्म. लेंस मेकर फॉर्मूला में अगर एक भी लाइन मिस हुआ तो वो किसी काम का नहीं है. दैट्स वाई यू हैव टू लर्न दिस. इनिशियली ये थोड़ा नया लगेगा, बाद में इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट डेरिवेशन इट विल बिकम फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन. ओके, तो mu2 बाय ऑफ mu1 वी आर जस्ट राइटिंग एज, नेक्स्ट लाइन में बता देना एग्जामिनर को कि वी कैन राइट अ mu ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 एज mu2 बाय ऑफ mu1, जिसको हम लोग mu लिख सकते हैं. बाद में जब ज़रूरत होगा तो मैं ऐसे लिख दूंगा. Sine of I by sine of R, you can keep it like this, that a sine of I is equals to mu sine R. I hope we can write like this. अब समझ लेने के बाद पॉज करो, इतना तक लिखो, समझो. If you have not understood, you can watch the video from the first again. I hope you will understand. Still, if you have any of the doubt, inform me. Now this angle of incidence, it is that much small that we can say that a sine of I is approximately said to be I, and a sine of R is approximately said to be R. After that we can say that I is equals to mu multiplied by of R. Now पिछले पेज पे चलते हैं. In the place of I we had written alpha plus of gamma. So it is alpha plus of gamma equals to mu into of, in the place of R, that is of gamma minus of beta, right? Okay, very good. After that we have to say something. It is not required. After that we have to say to the examiner that alpha is so small that it can be said that it is equals to of a tan alpha, and tan alpha equals to what we'll find out. Similar we'll find out for beta,
which is approximately equals to of a tan beta, and for gamma it is similarly equals to tan gamma. Okay, these three values will require. So we will just make some changes in the diagram. What I will do, I will just draw a normal. I'm just drawing a normal from the point A on the principal axis. This should be a dotted line, okay? And I'm assuming this point that is equals to M. So the value of tan alpha, let me just erase the rough portion that I did here. I'm just erasing this part because I require some space. Yeah, this one is good. Okay. So if I find out the value of a tan alpha, what you will get? Tan alpha equals to perpendicular by base. So angle of the side which is opposite to the angle alpha, that is actually AM. AM is actually the perpendicular ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. So we can say it is actually AM divided by of the base. The base should be OM. Similarly, we can say tan beta, it should be of the perpendicular AM divided by the base MI, because sorry, because in the case of a beta I have to say which is actually the perpendicular divided by the base, that is actually the base. Okay, and for the case of gamma, tan gamma should be equals to perpendicular AM divided by of MC. Okay, that should be AM by of MC. So now we can substitute the values because we know what is actually alpha. ये मैंने रफ किया, जब वहाँ पे लिखेंगे तो अलग से बता देंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा है. So in the place of tan alpha, that is actually the value of alpha, it should be AM by of OM. It should be equals to of AM by of OM. ठीक है. In the case of a tan beta, it should be AM by of MI. It should be AM by of MI. In the place of a tan gamma, it is equals to of AM by of MC. So it is AM by of MC. Simple thing it is. We'll just substitute the values. I don't have the space, so I'm just drawing a line over here and I'm just doing here. So alpha equals to AM by of OM plus gamma equals to AM by of MC equals to mu into of gamma is AM by of MC minus of beta is AM by MI. So in the next line I can take common that AM and we can cancel it out. So directly you can just make a step jump and you can write 1 by OM plus 1 by MC equals to mu into 1 by MC minus 1 by MI. ये आदिवासी लोग कहाँ से आ गए? Oh, now whenever you are seeing that OM, MC and MI, suppose if I am looking at OM, now the P and M, the point P and that point M, they are so close that we can say, दोबारा से बता रहा हूँ कि P और M इतना पास है that we can say that OP is, sorry, OP तो पहले नहीं बता सकता, I have to say like this. मैं दोबारा से वहाँ पे लिखूंगा, मैं just रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, that P and M they are so close that we can say OM is approximately equals to of OP. Similarly, ये OP ही बाद में actually हम लोग बोलेंगे this is actually the object distance. मैं आता हूँ उस पे, पहले इतना बता दूँ, लाइन को इरेज कर देता हूँ. After that can we say like MC is approximately equals to of PC, क्योंकि M और P बहुत क्लोज है तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि M से डिस्टेंस लेने से अच्छा है कि तुम P से ले लो डिस्टेंस. ओके, it is actually the center of that convex continuous surface.
After that, whenever I'm just measuring the distance from M and it is Mi, so we can say it is approximately equals to of Pi. ओके, तो यही चीज मैं वहां पे लिखने वाला हूं. मैं यहाँ पे बस रफ किया, डायग्राम को इतना गंदा नहीं करना है. सो वी विल राइट एज M एंड P. M एंड P लिखना सही नहीं होता है, ज़्यादा बेहतर होगा कि यू जस्ट राइट एज पॉइंट M एंड P, as a point M and P are too close, therefore you can say OM is approximately equals to of OP, and MC is approximately equals to of a PC, and MI is approximately equals to of PI. अभी मूवी देखना खत्म हो गया, अभी फिलहाल इतना तक लिख लो. देख के लगेगा ओ माय गॉड सो लॉन्ग डेरिवेशन इट इज, बट यही एक रास्ता है. लाइक सपोज इफ यू फॉरगेट that which formula I need to apply during the proof of lens maker formula, only this derivation can help you. Your friends will not able to help, they are also helpless. Okay, now pause कर लेना, उसके बाद सब कुछ लिखना. Now we are just moving to the next line, next page. So I can write that the line it should be like 1 by OP plus क्या लिखा था 1 by PC होना चाहिए. 1 by PC that is equals to mu into of 1 by PC minus 1 by PI. 1 by PC minus 1 by PI. जिन लोगों का पेशेंस बहुत कम है उनको ये डेरिवेशन और ये वीडियो दोनों अच्छे नहीं लगेंगे. दे कैन लीव इट, नो इशू. नहीं चाहिए मार्क्स तो लीव कर जाओ. ओके, नाउ let me just erase the rough part that I did here. I'm just erasing this portion. Now what I can say that in this case the distance OP, it is actually the object distance. Object distance is written as a minus of u. Object distance negative इसलिए होता है because you measure the object distance from the pole and you are measuring the distance in the opposite direction of incident ray. Incident ray O से A तक जाता है but you are measuring the object distance from P to O. That's why the object distance is negative. ये तो class 10 का चीज है, फिर भी I'm just saying. In the right hand side, whenever I'm just measuring the distance from P to C, that PC it should be the radius of curvature. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बचपन में सिखाया जाता है. एंड फ्रॉम P to I द डिस्टेंस, फ्रॉम P to I द डिस्टेंस, दिस वन एक्चुअली फ्रॉम P to I पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इमेज डिस्टेंस V. Whenever you are measuring the distances in the right hand side, you are traveling in the same direction of the refracted ray, so that's why the distances are positive. तो OP के जगह पे माइनस यू, PC के जगह पे R और PI के जगह पे V बिठाना है. ओके, सो वी कैन से दैट थिंग. In one side you just say that OP that is equals to of minus u, PC is equals to of R and PI is equals to of V. After that you can do like this, that 1 by minus u plus 1 by R equals to म्यू को अभी मैं लिख सकता हूँ μ2 by μ1. मैंने शुरुआत में ही कहा था, जहाँ ज़रूरत होगा मैं वैसे लिख दूंगा. 1 by R minus 1 by V. So if I cross multiply it will be μ1 by of minus u. लिखने से अच्छा है कि ऐसे ही लिख लो, minus of μ1 by u. I am just cross multiplying. Okay, mu1 into 1 by r, that should be of mu1 by r equals to mu2 by of r minus of mu2 by of v. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, mu1 को
एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, म्यू टू को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया. Now we can move like minus mu1 by u plus mu2 by of v equals to mu2 minus mu1 by of r. ये है वो फॉर्मूला जो मुझे चाहिए. एवरी टाइम द लाइट रे विल ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रेयरर टू डेंसर के लिए वैलिड है. ओके okay? वो कन्वेक्स कंटिन्यूअस सरफेस हो या कॉन्केव कंटिन्यूअस सरफेस हो, डज नॉट डिपेंड. इफ द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ओके इसका एक अपोजिट डेरिवेशन भी है, डेंसर टू रेयरर. अब आप लोग एक फॉर्मूला समझ गए, तो डेंसर टू रेयरर के केस में आप चाहो तो डेरिवेशन को याद रख सकते हो, अदरवाइज एक फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में दूसरा फॉर्मूला याद रख सकते हो. ओके जो आपको बेटर लगे. आई एम जस्ट डूइंग बोथ ऑफ द डेरिवेशंस एट a time. Now this one is completed. If you want you can go for some refreshment. पानी पी के आओ, चाय पी के आओ, खाना खा के आओ, कुछ भी कर लो. उसके बाद दूसरा पार्ट देखना, क्योंकि तुम लोगों का ब्रेन बहुत ही अच्छा है, एक साथ दोनों चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकता. रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स कंटिन्यूअस सरफेस. ये कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द लाइक, वो तो कंप्लीट हो गया. नाउ इन दिस केस द लाइट रे विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. मैं सरफेस को सेम ही रखता हूं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा. This time the surface will be like this. ऐसे, this is actually the principal axis and this is the pole which is known as a point P. I can say that the object is situated here. मैं वो पहले वाला चीज़ है वो कुछ नहीं लिख रहा हूँ. ओके वो सब कुछ सेम होगा दोनों डेरिवेशन में. मैं जस्ट डेरिवेशन बता दे रहा हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड. ओके डेरिवेशंस बहुत इजी हैं, आप अगर समझ गए तो आप नींद में भी कर सकते हो, इतना इजी है. Okay, as the convex continuous surface in this case it's like this, तो light ray denser medium से rarer medium में जा रहा है. Whenever the light ray is traveling along the principal axis, there is no refraction. Refraction का मतलब होता है light ray का bend होना. Whenever the light ray is not bending, that means there is no refraction. The light ray is going straight. But whenever the light ray will falling on the refracting surface, what will happen? In this case at the point of incidence I have to draw a normal. तो normal मैं इस तरीके से draw करूँगा ताकि it touches that center of curvature. We are assuming this is the center of curvature. So whenever the light ray is traveling from denser to rarer medium, after the refraction the light ray will go away from the normal. So away from the normal ही जा रहा है, normal से दूर. तो here it is forming the image. मैं वो सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार लिख चुका हूँ, इतना लिखूंगा तो आप लोग पक जाओगे. I am saying at the point O, the incident ray is making an angle of alpha with the principal axis. At the point C, it is making an angle of gamma, and at the point of I, the refracted ray is making an angle of beta with the principal axis. If I say which is actually the angle of incidence, so I can say this one is actually the angle of incidence I, and this one is the angle of refraction R. Now I will say that this is actually the point A. So what I can say, I'm just writing from this part, okay, that from triangle OAC, what I can say, that gamma is the external angle now. I hope you can visualize. ऐसा दिख रहा है, right? This is actually the triangle, looks like this is actually gamma, this is the angle alpha, and this is the angle I. So can I say that gamma is equals to alpha plus of I? Similarly, from triangle कौन सा वाला लूँ, from triangle CAI
और आप लोग ले सकते हो कि IAC, नाम बदल सकते हो, दिक्कत नहीं है। इट लुक्स लाइक दिस, ये देखने में बिल्कुल ऐसा है। Here the angle is beta, here the angle is gamma, and here the angle is R. R और gamma में confuse नहीं होना है। R is the external angle, so we can say R equals to of gamma plus of beta. Okay. Now we can say I equals to what? Gamma minus of alpha, and R equals to gamma plus of beta. After that we will say that from Snell's law मैं क्या कह सकता हूँ? From Snell's law we can say that a sine of I divided by of a sine of R, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मानना है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ2, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ1। रफ पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ बिकॉज आई रिक्वायर सम स्पेस, सारे इरेज कर देते हैं। इट इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्शन कहाँ पे हुआ है? रिफ्रैक्शन हुआ इन दैट मीडियम ऑफ एयर, तो जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। उसके बाद सेम चीज करना है। यहाँ पे पॉज करो, डायग्राम अच्छे से बनाओ, समझ में नहीं आया तो बताओ, I, or you can watch the video again. If still you are not understanding, then only you can say. In the next line we will just go and we'll say कि sin of I लेने से बेहतर है कि हम लोग I ले लेते हैं, right? And in this case what I will say, mu1 by mu2 आप इसको ऐसे लिख सकते हो in bracket. In the next line we'll write कि mu1 with respect to 2, it can be written as mu of 1 divided by mu of 2. ओके आप इसको म्यू कंसिडर नहीं कर सकते, एक्चुअली आप इसको 1 बाई म्यू कंसिडर कर सकते हो, तो आप इसमें ऐसा लिख लो, ऐसे मत जाओ, तो फिर ऐसे कर लो कि म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, इसको आप लोग लिख सकते हो कि म्यू 2 बाई ऑफ म्यू 1। अगर मैं इसको म्यू कंसिडर कर सकता हूँ, दैट मीन्स म्यू 1 बाई म्यू 2 को मैं 1 बाई म्यू कंसिडर कर सकता हूँ, राइट? इतना तो समझ में आता होगा कि μ2 बाई μ1 को अगर म्यू बोलता हूँ, दैट मीन्स μ1 बाई μ2 इट शुड बी ऑफ 1 बाई म्यू। आसान है, फिजिक्स कभी टफ था ही नहीं। साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, अब इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई साहब साइन ऑफ आई इज सो स्मॉल दैट वी कैन टेक इट एज आई, साइन ऑफ आर लेने से बेहतर है कि मैं सिर्फ आर ले लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई is I by of R is equals to 1 by mu, तो R equals to mu into I लिख सकते हैं। R की जगह पे क्या लिखूं मैं? R की जगह पे गामा प्लस बीटा, तो R की जगह पे गामा प्लस ऑफ बीटा, म्यू इंटू I की जगह पे क्या लिखूं मैं? गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। इसके बाद वही बताना पड़ेगा कि भाई साहब आप अल्फा लेने से बेहतर है आप टेन अल्फा ले लो, बीटा लेने से बेहतर है कि यू जस्ट टेक टेन बीटा, गामा लेने से बेहतर है यू जस्ट टेक टेन गामा। नाउ टेन अल्फा कंसिडर करने के लिए आई हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल, सो वी आर जस्ट ड्रॉइंग द नॉर्मल। The normal should be in a dotted line. Okay, this is actually the normal. We can see this point is M, and I can say the value of tan alpha ये just rough के लिए है, tan alpha equals to perpendicular क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, that is actually am by of base कौन सा होगा? Let's change the ink. Which one I should? Yeah. In this case, we can say that the base should be of OM. For the case of tan beta, we can say it should be of perpendicular is same, that is of AM, divided by the base should be of this much, na? That is of MI. I hope you can visualize tan gamma if I just find out.
it should be the perpendicular AM divided by the base should be of CM. अब तीनों को वहां पे बिठाना भी पड़ेगा कि मैं अल्फा को ले रहा हूँ ए एम बाय ऑफ, मैं भूल गया, ए एम बाय ऑफ ओ एम ना, ठीक है। बीटा का लिया था ए एम बाय ऑफ एम आई, सो इट शुड बी ए एम बाय ऑफ एम आई, एंड गामा के लिए मैंने लिया था ए एम बाय ऑफ सी एम, ए एम बाय ऑफ सी एम, ओके। So we can substitute the values here. So we can say, ओहो मैंने ऊपर के लाइन में थोड़ा सा गलती किया है, मैंने r को यहाँ पे गलती से दोबारा लिख दिया। You just remove that r, मैंने तो r की जगह पे वैल्यू बिठाया था, गलती से हो गया। We have substituted the value for the case of r and this value is for I, okay। तो गामा की जगह पे लिख सकता हूँ ए एम बाय ऑफ सी एम प्लस बीटा के जगह पे ए एम बाय ऑफ एम आई इक्वल्स टू म्यू इंटू ऑफ, गामा के जगह पे क्या लिखूँ, ए एम बाय ऑफ सी एम माइनस अल्फा के जगह पे ए एम बाय ऑफ ओ एम। सो ए एम को कॉमन ले लो, सो इट शुड बी 1 बाय सी एम प्लस ऑफ 1 बाय एम आई, that is equals to mu into of 1 by cm minus 1 by om। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई साहब m and p they are so close कि आप distances m तक ना लेके p तक ही ले लो। So I will consider that o से m तक का जो distance है you just consider as op, om तक का distance आप op consider कर लो, सी एम तक का डिस्टेंस आप सी पी कंसिडर कर लो, और एम आई तक का डिस्टेंस आप एम पी कंसिडर कर लो। सॉरी एम पी तो नहीं होगा, गलतियां होती रहती हैं, क्या करें। एम आई तक का डिस्टेंस आप पी आई कंसिडर कर लो। अगले लाइन में लिख देते, मतलब अगले पेज में लिख देते हैं। इन द केस ऑफ ओ एम एज द पॉइंट M and P are too close, as the point M and P are too close, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि CM should be approximately equals to of CP, MI should be approximately equals to of PI, and OM should be approximately equals to of OP। अब वीडियो को पॉज करना है, सिंपली इतना तक लिख लेना है अच्छे से, जहाँ पे दिक्कत होगा बताना है। आई होप समझ में आ रहा है। हाँ, तो अगले पेज में चलते हैं। तो 1 बाय ऑफ सी पी प्लस ऑफ क्या था, 1 बाय ऑफ पी आई इक्वल्स टू म्यू इंटू ऑफ 1 बाय सी पी माइनस 1 बाय ओ पी, 1 बाय सी पी माइनस 1 बाय ओ पी, ओके। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पिछले वाले पे। वी कैन से दिस मच इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब OP इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ U। अच्छा, इमेज कहाँ पे बना, इमेज तो इस साइड में बना, सो दिस इज एक्चुअली माई प्लस V, ओके। तो PI का मतलब हो गया प्लस V, आप चाहो तो लिख सकते हो कि OP का मतलब मैं बता रहा हूँ माइनस ऑफ U, PI एक्चुअली इमेज डिस्टेंस है तो plus V, and radius of curvature I am saying this much, इनका गोल गोल हटा देते हैं। radius of curvature I want to say with this ink, so this much is actually the radius of curvature, this is minus R, so I am considering CP as minus R because the radius of curvature it is in the left hand side na, you are measuring the radius of curvature in the opposite direction of the incident ray, इसीलिए अब इनको वहां पे भी बताना पड़ेगा। माय गॉड, सो वी विल से दैट CP is equals to of minus of R, PI equals to of plus of V, and OP equals to of minus of U। थर्ड ब्रैकेट छोटा हो गया,
After that we can say, we can continue it, that 1 by of minus r plus of 1 by of v इक्वल्स टू म्यू के जगह पे वही लिखना है। ऐसा नहीं कि इस बार तो उल्टा हो गया, मैं उल्टा लिख दूंगा, ऐसा नहीं। म्यू का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, म्यू टू बाई म्यू वन। तो वी कैन राइट लाइक म्यू टू बाई ऑफ म्यू वन। सी पी के जगह पे माइनस वन बाई आर है, सीपी के जगह पे आर है, वन बाय पहले से था इसलिए मैं वन बाय आर लिखा और मैं माइनस दे दिया, ठीक है। ओपी के जगह पे माइनस यू है, तो माइनस यहाँ पे बिठाऊंगा तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैं वन बाई यू और बगल में प्लस लिखा। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू कैन से माइनस ऑफ म्यू वन बाई आर प्लस ऑफ म्यू वन बाई ऑफ भी इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ आर प्लस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ यू। तो मुझे u और v को साथ साथ रखना है, हम साथ साथ हैं, लाइक दिस। सो माइनस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ u प्लस ऑफ म्यू वन बाई ऑफ v इक्वल्स टू म्यू वन माइनस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ r। ये है वो फॉर्मूला जो मैं चाहता हूँ। ये कब वैलिड है? जब लाइट रे तुम्हारा डेंसर से रेयरर में जाएगा। ये दोनों फार्मूलाज मुझे चाहिए फॉर द लेंस मेकर फार्मूला, नहीं तो लेंस मेकर फार्मूला का प्रूफ के टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि ये दोनों फार्मूलाज कहाँ से आया, मैं कैसे याद रखूँ। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन रिमेंबर। कुछ लोग होते हैं कि पहला फार्मूला का डेरिवेशन याद रखते हैं एंड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फार्मूला दे रिमेंबर द सेकेंड वन। ओके, अब कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो, पानी पी के आओ, ऐसे ही थोड़ा खेल कूद करके आओ। इट्स एक्चुअली नोन एज अ पोमोडोरो टेक्निक। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसी फालतू बकवास नहीं है। नाउ द मोस्ट अवेटेड डेरिवेशन that is actually for a lens maker formula. Lens maker formula के लिए we will consider that we'll have a biconvex lens. So this is actually the biconvex lens. We'll say that this is actually the center of the lens. We will assume as C, and in this case we will name that this is the point X and this is the point Y. इसमें लिखना पड़ेगा वही सारी चीज़ें जो मैं दोबारा से लिख ही देता हूँ। We will assume that there is the center of curvature C2 and here is the center of curvature as C1. So we can say this much is actually the radius of curvature R1, which we will consider as positive, and this one is actually the radius of curvature R2. ठीक है, so we are just saying that this is actually the object O. Whenever the light ray is traveling along the principal axis, there is no refraction, no bending of the light ray, it will go straight. So we will just write down each and everything, like the first part. an object is placed at point O. Sorry, an object is placed at point O when the light ray is passing through the principal axis. When the light ray is passing through the principal axis, it remains undeviated. कोई डेविएशन नहीं होता है. But whenever the light ray is falling on, ओहो थोड़ा बाहर चला गया, ड्राइंग भी नहीं आता है, ये दूसरा इंक यूज कर लेते हैं. Whenever the light ray is falling on the refracting surface, यहाँ पे दो refracting surface है. We will say that this point is actually known as a P1 and this point will known as a P2. So first refracting surface is XP1Y, second refracting surface is XP2Y. Oh my god, so we have to write this.
मूवी देखना खत्म हो गया है तो पहले ड्राइंग बना लो एंड राइट डाउन वट एवर वी हैव रिटन टिल नाउ. आफ्टर दैट विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज. इसमें लाइट रे का नाम देना पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा, दैट शुड बी ए. when the light ray when the light ray OA is falling on the first refracting surface, when the light ray is falling on the first refracting surface, that is of xp1y, it is making a real image, या फिर it is forming a real image. कहाँ पे बनेगा रियल इमेज? वी विल एज्यूम कि ये सरफेस अगर कंटिन्यूअस होता, एक्स पी वन वाई अगर एक कन्वेक्स कंटिन्यूअस सरफेस होता, सो इट विल जस्ट फॉर्म एन इमेज. ओहो सॉरी, it will just form an image here. We will say this image is I1. अगर वो xp1y कंटिन्यूअस होता, मतलब दूसरा सरफेस एब्सेंट होता, तो ऐसा होता. When the light ray OA is falling on the first refracting surface xp1y, it is making a real image at point I1. when दूसरी बार when हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे when the second refracting surface xp2y is assumed to be absent, वो एब्सेंट होता तो इसके लिए मैं वो फॉर्मूला अभी यूज करने वाला हूँ. व्हाट यू विल से, यहाँ पे कोई भी आपको साइन नहीं देना है. ऐसा नहीं कि मुझे ऑब्जेक्ट के लिए याद रखना होगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव है. इमेज तो आपका राइट साइड में बन रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव है. उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो ऑलरेडी आपने फॉर्मूला डिराइव करके रखा है. दैट इज इनफ. So we can say this much is actually the object distance. Object distance is minus of u. We will say this much is actually the image distance, not the final image. It is the image distance v1. किस तरफ इमेज बना है? राइट साइड में. तो हम लोग उसी तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे. दैट मीन्स दिस टाइम वी विल टेक द रेडियस ऑफ कर्वेचर r1. So we will use the formula. So for the refraction from rarer to denser, क्योंकि अगर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला आता है. therefore we can directly say that आप लोग चाहो तो लिख सकते हो फॉर रिफ्रैक्शन from rarer to denser medium through the refracting surface xp1y, then you can write like minus of mu1 by of u plus of mu2 by of v equals to mu2 minus of mu1 divided by of r1. इसमें कुछ सोचना नहीं है क्योंकि पहले से ही सब कुछ सेट है. साइन मैं पहले से ही इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में अप्लाई कर चुका था, तो यहाँ पे वापस से साइन नहीं देना है. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपने वापस से नेगेटिव कर दिया और ये बेचारा पॉजिटिव बन गया, वो गलत हो जाएगा. ओके, वी विल एज्यूम दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1. नाउ इसके बाद जो इमेज यहाँ पे बना था I1, इट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस xp2y. xp2y में रिफ्रैक्शन के लिए I1 विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट. तो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा. For second time refraction, या फिर for another time refraction, for second time refraction in xp2y, हो y तो कैपिटल होगा, ऐसे y लिख लेना. For second time refraction in xp2y, the image I1
the image I1 will behave as an object, will behave as an object। तो अगर वो ऑब्जेक्ट है तो मुझे फाइनल इमेज कहाँ मिलना चाहिए? तो लाइट रे और थोड़ा बेंट होगा, तो और थोड़ा बेंट होने के बाद मुझे फाइनल इमेज थोड़ा पास में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनल इमेज मुझे मिलना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द फाइनल इमेज आई। तो जब सेंटर से इसका डिस्टेंस मेजर कर लोगे, दिस फाइनल इमेज डिस्टेंस शुड बी वी। वो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, दैट इज एक्चुअली वी। तो इसका मतलब है फॉर सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन इन एक्स पी टू वाई द इमेज आई वन विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज final image forms at I। इसके बाद देयरफॉर देके डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि आप लोग डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने का ये फॉर्मूला जानते हो, इसी फॉर्मूला को वहां पे लिखना है। ओके, देख लो। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ, पिछले वाले में मैंने यहाँ पे गलती से v लिख दिया था, पर इसमें एक्चुअली तो v1 होगा ना, क्योंकि पिछले वाले में मैंने मान लिया था कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज एब्सेंट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया था माइनस u, इमेज डिस्टेंस हो गया था v1। ओके, तो यहाँ पे प्लीज चेंज कर लो v1। जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो गलती से ऐसा हो जाता है। ओके, अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो शायद ये चीज तुम लोग ओवरकम कर सको। ओके, तो अभी फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है? अगर हम लोग डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने वाला फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ म्यू वन बाई यू है ना, तो यू के जगह पे क्या लिखना चाहिए? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि v1 is actually the image which, sorry, v1 is actually the image distance that you had calculated when the image was formed at I1। जब सेकेंड वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं था तब इमेज बना था I1, उसका इमेज डिस्टेंस है v1। अब ये I1 तो ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा ना सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इसका मतलब सेकेंड वाला रिफ्रैक्शन के टाइम पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे मैं v1 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ v1 प्लस ऑफ म्यू वन बाई ऑफ, इसके बाद μ1 के नीचे क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। फाइनल इमेज कहाँ पे बना है? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट I एंड द इमेज डिस्टेंस इज v। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। μ2 के नीचे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना था, मैंने v1 लिखा। μ1 के नीचे इमेज डिस्टेंस लिखना था, मैं v लिखूंगा। ओके, तो μ1 बाय ऑफ v इक्वल्स टू क्या था? μ1 माइनस ऑफ μ2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस बार कौन सा लेना होगा? पिछली बार हम लोगों ने r1 लिया था, इस बार तो मैं इस सरफेस को चूज किया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। तो दिस टाइम वी विल टेक एज r2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद तो काम आसान हो गया, यही तो डिफिकल्ट पार्ट था। 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो 1 में था माइनस म्यू वन बाई यू प्लस ऑफ म्यू टू बाई ऑफ, ओहो, मैं मतलब क्या ही बताऊं, मैं गलती से यहाँ पे v2 लिख दिया। इतनी सारी गलतियां हो जाता है, ये तो v1 होगा ना, क्योंकि इमेज डिस्टेंस एक्चुअली v1 था, तो यहाँ पे v1 ही लिखना चाहिए था। पता नहीं, दिमाग खराब हो गया, मैं v2 लिख दिया। अगर समझने में दिक्कत है तो पूछ लो। ओके, इक्वेशन 1 में क्या था? माइनस ऑफ म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई ऑफ v1। यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या था? माइनस ऑफ म्यू टू बाई v1 प्लस ऑफ म्यू वन बाई ऑफ v, और इस साइड में म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई ऑफ r1 प्लस म्यू टू माइनस, ओहो, इक्वेशन 2 में तो म्यू टू पहले नहीं है, इक्वेशन 2 में म्यू वन पहले है,
तो इट इज mu1 minus of mu2 by of r2. So what I will do after the opening of the bracket, वो cancel out हो जाएगा, right? This part will be cancelled out. So we can say minus of mu1 by of u plus of mu1 by of v equals to, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, mu2 minus mu1 को कॉमन ले लेते हैं. So I will get 1 by r1. अब ये जो पार्ट है दैट इज नेगेटिव ऑफ mu2 minus mu1. इसका मतलब मैं अगर जबरदस्ती mu2 minus mu1 को कॉमन ले रहा हूं, सो इन द फर्स्ट टर्म इट विल बिकम +1, बट अगले वाले टर्म में क्या होगा, इट इज माइनस ऑफ 1 by r2. रीजन क्या है? रीजन यही है कि mu1 minus mu2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ mu2 minus of mu1. इसीलिए जब आपने mu2 minus mu1 को कॉमन लिया तो mu1 minus mu2 के जगह पे क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए. ओके, तो इतना तक तो हुआ. लेफ्ट हैंड साइड से mu1 को कॉमन ले लो. mu1 कॉमन लेने के बाद 1 by v minus 1 by u equals to mu2 minus mu1 into of 1 by r1 minus 1 by r2 लिख सकते हैं. यहाँ तक पहले पॉज करके लिख लो, फिर अगले पेज में जाना. अगले पेज में mu1 को मैं राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा. राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में मतलब mu2 minus mu1 के नीचे. ओके, तो इसमें जो भी लिखा है मैं इरेज कर देता हूँ. तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 by v minus 1 by u equals to mu2 minus of mu1 by of mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2. तो 1 by v minus 1 by u mu2 by of mu1 minus mu1 by mu1 part division into 1 by r1 minus 1 by r2. तो क्या मैं लिख सकता हूँ mu2 by of mu1, इसको तो हम लोग म्यू लिखते हैं, माइनस ऑफ ये तो कट जाता है, दैट इज 1 by r1 minus 1 by r2. आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन. आप चाहो तो इसके आगे भी बता सकते हो कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे इंफिनिटी बिठाओगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा. तो 1 by f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2 हो सकता है. कंटिन्यूअसली इतना सारा रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड दिमाग खराब हो जाता है. अभी कितना टाइम हो रहा है, 3 बज गए, अभी तक लंच नहीं किया, जाके खा लेता हूँ. कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताना.